So once again, I welcome in the course Geotechnical Engineering. So yesterday discussion, we have seen that the passive earth pressure, and then how to compute the passive earth pressure, and how to locate the passive earth thrust. And then I have discussed what is the one of the classical theory, that is the Rankine's earth pressure theory, and we have seen the various assumptions taken by the Rankines, and in which the soil is homogeneous and isotropic, and the soil is dry and cohesionless, and there is no friction between the back face of the wall and backfill, and the ground surface may be horizontal or inclined. And then after we have discussed the 5 different cases. The first case, when the backfill is dry, then how to compute the active, passive, or at rest earth pressure. And when the after that, we have seen that the effect of surcharge, when surcharge loading is there, then how to compute the active earth pressure and passive and at rest. And then I have discussed the layered soil, when there is a 2 or 3 layers will exist in the backfill, then how to compute the lateral earth pressure and lateral earth thrust. And the fourth question that I have discussed, that is the effect of water table. If water table is present at the ground surface or at any location in between the height of the wall, so how to compute the lateral earth pressure. So today I will discuss the how to draw the Mohr circle for these 3 different conditions, whether when the condition will be active or passive, then how to draw this Mohr circle. So before that, a quick recap what we have discussed in the last class. So we have discussed the passive earth pressure. So passive earth pressure, I told you about the passive earth pressure, that if the movement of wall is into the soil, then pressure acting on the wall due to this backfill is called passive earth pressure. So passive earth pressure, movement of wall is into the soil, and in this case we have seen that what is the value of delta H. So delta H is equal to 2 to 15% of H. 2 to 15% of H. If I draw the retaining wall, so let us assume this is the retaining wall of height H. So this is the height H. And if I draw the failure plane, so let us assume this is our failure plane. So what will happen? So let us assume this is the soil wedge. So the movement of wedge will be in upward direction, and the shear resistance will act in the downward direction. This is the failure plane. This is the movement of wedge, and this is the shear resistance. So movement of wedge is in upward direction, and the shear resistance in downward direction, and the strain will come in to achieve the passive condition, that is equal to 2 to 15%. And the magnitude of passive earth pressure at any depth Z can be computed as PP is equal to Kp into gamma into Z. That is the expression of passive earth pressure at any depth Z, where Kp is the passive earth pressure coefficient, can be written as 1 plus sine phi divided by 1 minus sine phi, and it is the inverse of 1 by K. Similarly, the total passive thrust can be computed at the total passive thrust, that is 1 by 2 into Kp into gamma H square, and it will act at a distance of H by 3. So act at a distance of H by 3 from base of the wall. And after that, I have discussed what is the Rankine earth pressure theory. So Rankine earth pressure theory. In Rankine earth pressure theory, we have discussed the different cases when backfill is dry. When backfill is dry, then how to compute the earth pressure. So let us assume this is our retaining wall, and this is the ground surface of retaining wall of height H. So we can compute the earth pressure just taken the area of the
pressure diagram. So this is the active earth pressure diagram due to phi soil. So due to phi soil, so what is the magnitude of, so K, let us assume I have taken the active case, so K into gamma H. So what will be the value of PA at any depth, total PA 1/2 into K into gamma H square, and this total thrust acting at a distance of H/3 from base of the wall, where K is the active earth pressure coefficient, can be written as 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi. Gamma is the unit weight of the backfill, and phi is the angle of internal friction if there is no water table is very far away from the backfill. Second case I have discussed the effect of surcharge. That is the effect of surcharge loading. So in case of surcharge loading, we have seen that, let us assume this is our retaining wall and this is the ground surface. So, and surcharge loading of intensity, let us assume this is the intensity of Q, having the height, retaining wall height is H. So additional loading due to the surcharge loading, active earth pressure will increase by K into Q. So this is the active earth pressure diagram due to phi soil, plus additionally the uniform pressure will act, that is called due to the surcharge loading. So this is the active earth pressure diagram due to Q, surcharge loading. So what is the magnitude of this what is the magnitude? So at the top it will be K into Q, and at the bottom it will also K into Q. Here is also K into Q, and here is K into gamma into H. If I study the active condition, so a total diagram can be written as total active earth pressure diagram can be written as, so this is the total active earth pressure diagram. What is the value? So with K into gamma H plus K into Q, and at the ground surface, so it will be K into Q, where Q is the intensity of loading. K is the active earth pressure coefficient, and Q is the surcharge loading. Third case I have discussed that if the third case, that is for in the layered soil, So when there is a 1 or 2 or 3 or 4 layer will exist in the backfill. So I have taken the simplest case. Let us assume this is the height of the retaining wall, and at a depth Z1 from the ground surface, the property of the backfill like gamma 1 and phi 1, and at a depth of Z2 from the bottom of the wall, the property of the backfill is gamma 2 into phi 2. So we can compute individually due to the in layer 1. Let us assume this is the layer 1. So in layer 1 we can compute the active earth pressure. What will be the magnitude? So it will be Ka1 into gamma 1 into H1, where Ka1 is equal to 1 minus sin phi 1 divided by 1 plus sin phi 1. Similarly in layer 2, if I compute the if I draw the active earth pressure diagram, so it will be this is Ka2 into gamma 2 into H2, plus additionally due to the gamma 1 into Z1 surcharge loading, additional active earth pressure will act, that is the uniform active earth pressure, that is K2 into Q. Q is gamma 1 into H1. So this is the total active earth pressure, and we can compute. So the total active earth pressure can be computed as, so total P is equal to PA1. So what is the value of PA1? That is 1/2 into Ka1 into gamma 1 into H1 square, plus 1/2 into Ka2 into gamma 2 into H2 square, plus Ka2 into gamma 1 into H1. Sorry, here I have taken the Z1 and Z2. So if let us assume this is H1, and this is H2. So we can write gamma K into gamma K2 into gamma 1 into H1 into H2. So this is the total thrust, where K2 can be written as K2 is equal to 1 minus sin phi 2 divided by 1 plus sin phi 2. And the line of action, of course, for the first total active thrust, it will act as a distance of H2 plus H1/3 from the base of the wall. And for this is 1, this is second, and this is third. So for the second active earth pressure diagram, so that is PA2 will act at a distance of H2/3, and PA3 will act at a distance of H2/2. The last case I have discussed in the yesterday class, that is the effect of water table.
So in case of water table, let us assume this is our retaining wall. This is the retaining wall, and this is the ground surface, and position of water table is at the ground surface. So position of the water table, so we can draw the pressure diagram, active earth pressure due to phi soil. So this will be value of K into gamma submerged into H plus additional hydrostatic pressure that will act or due to the presence of the water table, that is equal to that is gamma W into H. So this is the pressure diagram 2 and this is the pressure diagram 1. So PA1 can be written as 1 by 2 into K into gamma submerged into H square, and PA2 can be written as 1 by 2 into gamma W into H square. And of course both of them will act at a distance of H by 3 from the base of the wall. So this is all about what we have discussed in the last class. So today I am going to discuss what is the how to draw the Mohr circle. So if I write the today's lecture outcome, so after the completion of today's session, students will able to understand first what is Mohr circle, how to draw the Mohr circle, how to draw Mohr circle in active and passive case. In active and passive case, and after that they can attempt problems based on active at rest and passive earth pressure. When C is equal to 0. Because I have not discussed when the effect of cohesion is taken into account when we compute the value of active and passive earth pressure. So these are the today's session outcome of today's class. That is the after the completion of this today lecture, student will understand what is the Mohr circle and how to draw the Mohr circle in active and passive case, and they can attempt problems based on active at rest and passive earth pressure when the backfill is cohesionless. So let us take what is the active what is the Mohr circle in case of active condition. So how to draw the Mohr circle? So I am taking the first case, that is the active state. So active earth pressure condition. In case of active earth pressure, we have already discussed what is the Mohr circle. So Mohr circle is the graphical representation in which on the y-axis there will be a shear stress, and on the x-axis this is the normal stress. So if I draw the Mohr circle, so let us assume this is the y-axis and this is the x-axis. On the x-axis there will be the normal stress, and on the y-axis it will be the shear stress. So if firstly I will discuss if our wall is at the rest condition. If at the rest condition, so what is the value of vertical stress at that condition? So at rest condition, if I draw, let us assume this is the Mohr circle I have drawn, and this is the vertical stress. This value is vertical stress. What is the value of let us assume this is our retaining wall. This is the retaining wall, and this is the ground surface, and I have taken a soil element. So at any depth Z, what is the vertical stress? So it will be the sigma B is the gamma Z. So what will be the when there is no movement of the wall either away from the soil nor into the soil, then what is the value of horizontal stress? So that is equal to K naught into sigma B. So let us assume this value is K naught into sigma B. So this value is K naught into sigma B. So if the movement of wall is away from the soil, so what is the value of vertical stress? Vertical stress will be constant. Vertical stress जो हमारा होगा वो constant होगा. लेकिन जैसे जैसे movement of wall away from the wall होगा, means wall movement is greater than 0 होगा, so हमारा जो horizontal stress होगा वो वाला जो value होगा अब इस value से कम होना start हो जाएगा. तो क्या होगा? दूसरा अगर Mohr circle खींचा जाए, let us assume, तो कुछ इस तरह का वर्टिकल स्ट्रेस विल बी सेम, और इसको हमने बोल दिया कि ये कुछ एक वैल्यू है. लेट अस अज्यूम दिस इज द
एक वैल्यू होगा। उसी तरह एक ऐसा कंडीशन आएगा जब वॉल जो है वो अपना मैक्सिमम मूवमेंट, मतलब कि वॉल का मूवमेंट जो है वो मैक्सिमम हो गया है, और उस कंडीशन पे मोर सर्कल है एक फेलियर इन्वेलप को टच करेगा, दैट इज मोर कूलम फेलियर इन्वेलप। और उस कंडीशन पे जो हमारा स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस को बोला जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस को, दैट विल बी द एक्टिव अर्थ प्रेशर, या जो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो होगा। लेट अस अज्यूम दिस इज द कंडीशन। तो मैंने तीन मोर सर्कल यहाँ पे बनाया है। लेट अस अज्यूम दिस इज द थर्ड मोर सर्कल। ये एक ऐसा मोर सर्कल है जो एक टच कर रहा है किसको, मोर कूलम फेलियर इन्वेलप को। लेट अस अज्यूम दिस इज द मोर कूलम फेलियर इन्वेलप। क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया था क्विक एंड कंडीशन में, व्हाट इज द मोर कूलम इन्वेलप। तो इसका इक्वेशन जो हमने बताया था कि टॉ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा इनटू tan phi. So this angle will intercept with the horizontal axis, or normal axis will give the angle of internal friction and intercept will give the cohesion. So shear stress का देखो यहाँ पे क्या है, tau is equal to c plus sigma tan phi। तो c क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट, और हमारा phi जो है वो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। So this value will be the phi and intercept will be the on the shear stress axis will give the cohesion. So मैंने बोला क्या कि एक तीन मोर सर्कल हमने यहाँ पे खींचा है। Let us name it, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहला मोर सर्कल क्या था, मोर सर्कल 1 के बारे में अगर लिखा जाए तो क्या है, मोर सर्कल फर्स्ट क्या है, when the wall displacement या wall movement, when the wall movement is 0। देखिए यहाँ पे मोर सर्कल 1 के बारे में आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट when the wall displacement is 0, so the vertical stress will act, the vertical stress will be this point, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो होगा उसको हमने क्या, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब वॉल मूवमेंट 0 है तो उस कोफिशिएंट को हमने के नॉट नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया, के नॉट, और इसको हमने नाम दे दिया है पीए, और इसको मैंने ऐसा ही एक नाम दे दो, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एच डैश। ओके, अब जैसे मोर सर्कल 2 है तो मोर सर्कल सेकंड जो है उसमें क्या है कि वॉल का मूवमेंट जो है अब 0 नहीं है, वॉल मूवमेंट इज ग्रेटर देन 0, और वॉल क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम मूव अवे हो रहा है। दैट्स व्हाई द वर्टिकल स्ट्रेस वैल्यू जो है, जो हमारा एट रेस्ट वैल्यू घट रही है। जैसे जैसे वॉल का मूवमेंट अवे फ्रॉम द सॉइल, अगर इनटू द सॉइल होता तो इससे ज्यादा होता। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूं, कि जो पहला मोर सर्कल है उसमें वॉल का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल 0 है, तो वर्टिकल स्ट्रेस जो होगा वो तो है ही है, एट डेप्थ जेड पे हमने ले लिया है, उसको हमने एक अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा क्या हो गया, एट रेस्ट अर्थ प्रेशर। यानी ये वाला वैल्यू जो है के नॉट इंटू सिग्मा भी, ये क्या है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। अब दूसरा मोर सर्कल हमने खींचा है, तो मोर सर्कल 2 जो होगा, मोर सर्कल 2 जो होगा क्या होगा, when the wall displacement is greater than 0, अब एक ऐसा कंडीशन होगा मोर सर्कल थर्ड, when the wall displacement is greater than 0 and it will touch on the Mohr Coulomb failure envelope, and at that time the horizontal stress will be the active अर्थ प्रेशर। सो अगर मोर सर्कल 3 में देखेंगे, अगर यहाँ पे देखो, दिस इज द कंडीशन वेयर मोर सर्कल टचेस द मोर इन्वेलप, दिस इज द मोर इन्वेलप, फेलियर इन्वेलप और मोर कूलम्ब इन्वेलप। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 स्ट्रेस है, एक क्या है, अगर मोर सर्कल थर्ड को आप देखोगे तो 2 स्ट्रेस है, वन स्ट्रेस इज सिग्मा बी एंड अनदर स्ट्रेस इज पी ए। सो व्हाट विल बी द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो 2 स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमें मिलेगा, कौन कौन सा बताइए, एक तो सिग्मा बी और एक पी ए। तो हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगा एक्टिव कंडीशन में, इन एक्टिव कंडीशन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा बताइए, मेजर प्रिंसिपल
स्ट्रेस वो कितना होगा, बोलो, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा बी मेजर स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू सिग्मा बी, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू पीए, जो कि एक्टिव अर्थ प्रेशर है हमारा। सो एक्टिव कंडीशन में जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो हमारा सिग्मा बी, जो हम एट एनी डेप्थ जेड पे वर्टिकल स्ट्रेस निकाला है वो होगा, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू जो होगा वो हमारा पीए की वैल्यू के बराबर होगा। यहां तक बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो कि कैसे ड्रॉ हुआ है मोर सर्कल, बताओ, कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। एनी डाउट? आप मोर सर्कल अब ड्रॉ कर लोगे ना एक्टिव कंडीशन में। आप पैसिव कंडीशन में कैसे ड्रॉ करेंगे, पैसिव कंडीशन में कैसे ड्रॉ होगा, तो अगर सेकंड केस अगर मैं लू, सेकंड केस दैट इज पैसिव कंडीशन, तो पैसिव कंडीशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वॉल इज इनटू द सॉइल। तो सबसे पहले फिर से हमने एक रिटेनिंग वॉल लिया, एक रिटेनिंग वॉल को हमने लिया जो कि एट रेस्ट कंडीशन में है, रिटेनिंग वॉल दैट इज एट रेस्ट कंडीशन, और जिसकी हाइट h है, और हमने एट एनी डेप्थ z पे हमने क्या निकाला है, यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रेस होगा और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर से हमने क्या किया, पहले सबसे पहले तो एक्सिस को ड्रॉ किया, वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, ऑन वाई एक्सिस देयर इज ए शियर स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखो, जब हमारा क्या होगा कि जो देयर इज ए नो मूवमेंट ऑफ वॉल, मूवमेंट ऑफ वॉल इज नाइदर अवे फ्रॉम द सॉइल नॉर इनटू द सॉइल, देन कौन सा कंडीशन होगा, एट रेस्ट कंडीशन। एट रेस्ट कंडीशन में फिर से क्या होगा हमारा, तो वर्टिकल स्ट्रेस जो होगा, वर्टिकल स्ट्रेस जो है, लेट अस अज्यूम दिस इज द, ये हमारा क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस, और ये वाला जो हो जाएगा हमारा के नॉट इंटू सिग्मा बी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की वैल्यू जो हो जाएगी, और वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू ये, ठीक है। जब हमारा मूवमेंट ऑफ वॉल है जो पुश कर रहा है इनटू द सॉइल हुआ, मतलब कि मूवमेंट ऑफ वॉल तो है ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ वॉल हो रहा है इनटू द सॉइल हो रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की वैल्यू होगी अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी, के नॉट सिग्मा बी से बढ़ेगी या घटेगी, बोलो, घटेगी। अरे बढ़ेगी ना, बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। अब पुस्ट हो रहा है तो उस पर स्ट्रेस जो लग रहा है, बॉल का पूरा मूवमेंट बैकफील्ड की तरफ हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वॉल जो हो रहा है कुछ इस तरह हो रहा है, बढ़ेगी सर। हाँ तो बढ़ जाएगा ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, क्योंकि अब उस पे स्ट्रेस, वॉल बिल्कुल अंदर जाना चाह रहा है, तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो किससे ज्यादा हो जाएगा, के नॉट सिग्मा वी से। तो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस तो सेम रहेगा ना, वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हो जाएगा वो कुछ बढ़ जाएगा। तो दूसरा पहला मोर सर्कल ये है हमारा, और दूसरा मोर सर्कल ये है। इसी तरह एक ऐसा कंडीशन आएगा जो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन, जहां पे हमारा मोर सर्कल क्या है, टच करेगा किसको, फेलियर इन्वेलप को। तो तीसरा मोर सर्कल जो आएगा जिसका वर्टिकल स्ट्रेस तो सेम रहेगा, लेकिन ये एक किसको टच करेगा, तो एक टच करेगा मोर कूलम इन्वेलप को। लेट अस अज्यूम दिस इज आवर मोर कूलम इन्वेलप, और ये कुछ इस तरह टच करते हुए कुछ इस तरह, दिस इज द एक्सिस, दिस इज द थर्ड मोर सर्कल जहां पे पैसिव कंडीशन हमारा होगा, यहाँ पे टच किया। सो दिस इज द मोर सर्कल थर्ड। सो ये वाला वैल्यू ये है, और ये वाला जो हमारा हो जाएगा वो पैसिव स्ट्रेस हो जाएगा। दिस एक्सिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, और ये मोर कूलम इन्वेलप है, टॉ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा इंटू टेन फाई, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है, इसका स्लोप जो फिर से आपको अगर निकालोगे तो दिस इज फाई, और ये जो इंटरसेप्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कोहेजन हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाए, मोर सर्कल वन के बारे में, मोर सर्कल फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, मोर सर्कल वन में क्या है हमारा, वॉल डिस्प्लेसमेंट जो है बिल्कुल जीरो है। मोर सर्कल फर्स्ट के बारे में लिखा जाए तो वॉल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हमारा वर्टिकल स्ट्रेस जो है वो सिग्मा बी है, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो है वो के नॉट इंटू सिग्मा बी, दैट इज फॉर अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। मोर सर्कल अगर टू को देखा जाए, मोर सर्कल सेकेंड, तो क्या हो रहा है, वॉल मूवमेंट ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन पुश्ड इनटू द सॉइल,
सो यहाँ पे हमारा जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है वो के नॉट सिग्मा वी से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस जो होगा वो सिग्मा वी होगा, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन के नॉट इंटू सिग्मा वी। या तो अगर बोला जाए कि यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो हमारा यहाँ पे भी है वो सिग्मा बी है, और माइनर जो है हमारा वो के नॉट सिग्मा बी है। अगर मोर सर्कल थर्ड की बात किया जाए, एक ऐसा कंडीशन मोर सर्कल थर्ड जहां पे हमारा क्या है, वॉल मूवमेंट ग्रेटर देन 0 pushed into the soil, in which more circle will touches the failure envelope at that time horizontal stress will be the passive earth pressure। सो इस केस में जो हमारा स्ट्रेस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव अर्थ प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए कि अगर मोर सर्कल थर्ड को देखा जाए, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे मोर सर्कल अगर थर्ड के बारे में बात किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू जो है, यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो क्या होगा वो इटसेल्फ जो होगा वो पैसिव अर्थ प्रेशर है। देखो आप मोर सर्कल थर्ड में देखिए आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, पीपी, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस। तो अगर पैसिव कंडीशन में क्या हो जाता है, पैसिव कंडीशन की अगर बात की जाए, पैसिव कंडीशन में क्या होगा कि हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होगा, वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो हो गया हमारा वो क्या है, जो हमारा है दैट इज इक्वल टू पैसिव अर्थ प्रेशर, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है, दैट इज इक्वल टू वर्टिकल स्ट्रेस जो है हमारा वो क्या है, वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। बोलो इसमें किसी को डाउट। तो दोनों के कंडीशन से जो हमने जो वैल्यू लिखा है, जब कोहेजन को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा, जब इफेक्ट ऑफ कोहेजन लेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। तो वो ये इसी एक्सप्रेशन से आएगा, मोर सर्कल को जब सॉल्व करेंगे तो वो एक्सप्रेशन आएगा जिसको हम लोग देखेंगे कोहेजन में। फिलहाल ये बताओ कि मोर सर्कल, दोनों के मोर सर्कल में कोई दिक्कत है, एक्टिव और पैसिव के कंडीशन में कोई डाउट है? सर फेलियर इन्वेलप के बाद मतलब फेल हो जाएगा वो रिटेनिंग वॉल। हाँ, जैसे टच कर जाएगा, मतलब ये वो मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। अच्छा, ओके सर। जी, कोई डाउट? चलो क्वेश्चन करिए। फर्स्ट क्वेश्चन of the today's session I have taken from the GATE 2018. A 3-meter high vertical earth retaining wall retains a dry granular backfill with angle of internal friction of 30 degree and unit weight of 20 kilonewton per meter cube. If the wall is prevented from yielding, the total horizontal thrust in kilonewton per meter length of the wall is। कौन सा कंडीशन है? प्रिवेंटेड फ्रॉम यील्डिंग, मतलब कि मूवमेंट नहीं हो रहा है वॉल का जो है मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक 3 मीटर वॉल का हाइट है, एक 3 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल है, और जिसका आपका बैकफिल का प्रॉपर्टी दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, और गामा की वैल्यू जो है वो कितनी है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। सो 3 मीटर हाइट है ये। और यहाँ पे आप बोल रहा है कि वॉल का मूवमेंट जो है नाइदर अवे फ्रॉम द सॉइल नॉर इनटू द सॉइल, नॉर अवे फ्रॉम द सॉइल। तो क्या हो गया, एट रेस्ट कंडीशन है। तो सबसे पहले तो के नॉट की वैल्यू निकाल लो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है तो एज्यूम कर लिए कि सॉइल जो है हमारा नॉर्मली कंसोलिडेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू जैकी इक्वेशन क्या बताया गया है, के नॉट की वैल्यू नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए, बोलिए 1 माइनस साइन 5, तो 1 माइनस साइन 30 कितना हो गया वैल्यू, 1/2। अब निकाल लो। अगर यहाँ पे आप इसका प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस पे कितनी हो जाएगी, के नॉट इंटू गामा इंटू एच। तो टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टोटल थ्रस्ट एट रेस्ट कंडीशन
that is equal to 1 by 2 into k naught into gamma into h square. So 1 by 2 into k naught की वैल्यू कितनी है 1 by 2 गामा की वैल्यू कितनी है गामा इज इक्वल टू 20. So 20 into 3 स्क्वायर. So कितना हो गया देखो देखिए 180 डिवाइडेड बाई 4 45 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. टोटल थ्रस्ट जो आ रहा है इस पे कितना आ रहा है दैट इज इक्वल टू 45 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ h/3 फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल. Second question, a smooth vertical wall 6 meter high retains a cohesionless backfill with horizontal surface. तो these are ये सारा का सारा assumption है रैंकाइंस का. एक smooth vertical wall मतलब कि फ्रिक्शन नहीं है, cohesionless backfill, horizontal surface. तो सारा का सारा क्या है ये assumption है किसका रैंकाइंस थ्योरी का. The properties of fill are wide ratio दिया हुआ है, phi की वैल्यू दी हुई है और specific gravity of the solid दी हुई है 2.65. Compute the magnitude of total lateral earth pressure for dry backfill. तीन कंडीशन है. When wall is restrained against yielding, कोई yielding नहीं हो रहा है, वॉल जो है बिल्कुल फिक्स्ड है. तो कौन सा कंडीशन हो गया एट रेस्ट कंडीशन. द वॉल इज फ्री टू यील्ड अवे फ्रॉम द बैकफिल. तो क्या हो गया ये मतलब कि हमारा क्या है अवे फ्रॉम द सॉइल मतलब कि एक्टिव कंडीशन एंड द वॉल इज पुश्ड टुवर्ड्स बैकफिल. तो कौन सा कंडीशन हो गया पैसिव कंडीशन. तीनों कंडीशन में आपको टोटल लैटरल प्रेशर आपको निकालना है. जल्दी से निकालिए. निकालो जल्दी से कितना आ रहा है. सबसे पहले तो गामा की वैल्यू निकाल लीजिए. गामा की वैल्यू गामा निकाल लो. गामा की वैल्यू निकालिए. कितना कौन सा डेंसिटी निकालेंगे कौन सा डेंसिटी बल्क डेंसिटी या सैचुरेटेड. ड्राई निकालेंगे. हाँ ड्राई निकालेंगे यहाँ क्योंकि आपका दिया हुआ है ड्राई बैकफिल. तो गामा डी क्या हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई. निकालिए जल्दी से. $17.44 kilonewton per meter cube. कितना आया 17.44 kilonewton per meter cube. तो यहाँ से गामा डी हमने निकाला क्या गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई. सो 2.65 इंटू 9.81 2.65 into 9.81 divided by 1.49. So it is coming 17.44 kilonewton per meter cube. First condition, when wall is restrained against rotation, means there is no movement of wall is either away from the soil nor into the soil. So if I compute the value of total lateral thrust at rest condition, so what is the value of this? So K naught into gamma into H, and this height is H. So what is the total thrust? So total thrust is P naught, is that is equal to 1 by 2 into K naught into gamma into H square. So K naught can be computed as 1 minus sine phi. Let us assume the soil is normally consolidated, because if I assume the over consolidation soil, so over consolidation ratio should be known. We have assumed that our soil is normally consolidated. So K naught can be computed at that is equal to 1 minus sine phi. So 1 minus sine 30, that is equal to 1 by 2. So P naught can be computed as 1 by 2 into 1 by 2 into K naught into gamma. So what is the value of gamma? That is 17.44. So 17.44 into 6 square. So it is coming 17.44 into 9. 17.44 into 9. So it is coming 156.96.
156.96 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल, पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? दूसरा कंडीशन कि व्हेन वॉल इज मूव अवे फ्रॉम द सॉइल द वॉल इज फ्री टू यील्ड, मतलब कि अब रेस्ट कंडीशन नहीं है। अगर सिर्फ फ्री टू यील्ड बोलेगा तो नहीं समझेंगे कि क्या है मतलब। अब अवे फ्रॉम द सॉइल या इनटू द सॉइल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवे फ्रॉम द बैकफिल, तो क्या हो गया मतलब एक्टिव कंडीशन। So in case of active condition, we can compute the value of K, that is equal to 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi. So 1 minus sin 30 divided by 1 plus sin 30. So it will be 1 by 3. So PA can be computed as PA is equal to 1 by 2 into K into gamma into H square. So what is the value of 1 by 2 into 1 by 3 into 17.44 into 6 square. So tell me the value. 17.44 into 6. 104.64 kilonewton per meter length of the wall. Third condition, that is when the wall movement of wall is into the soil. So we have to compute the value of Kp. So Kp is just inverse of K. So 1 by K means 3. So Pp can be computed as 1 by 2 into Kp into gamma into H square. So 1 by 2 into Kp is 3 into gamma is 17.44 into 6 square. So what is the value? So it will be 17.44 into 18 into 3. कितना आ रहा है? 941.76 किलो 941.76 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल। अब सिर्फ ऐसे करके अगर बना दोगे तो जो आपका टोटल मार्क्स है वो मिलेगा नहीं आपको। आपको ड्रॉ करके सारा चीज बताना होगा कि कितना आ रहा है। एट रेस्ट कंडीशन में जैसे ये वाला वैल्यू भी बताना होगा कितना एट बेस पे प्रेशर कितना आ रहा है, तब कितना थ्रस्ट आ रहा है। उसी तरह एक्टिव कंडीशन के लिए भी ड्रॉ करना होगा। एक्टिव कंडीशन ये तो नो मूवमेंट है, मतलब एट रेस्ट कंडीशन है, एट रेस्ट कंडीशन है। उसी तरह आप एक्टिव कंडीशन के लिए भी रिटेनिंग वॉल को ड्रॉ कीजिए। और पैसिव कंडीशन के लिए भी प्रेशर का डायग्राम, प्रेशर डायग्राम इज इंपोर्टेंट। सो कि किसी भी कन्वेंशनल क्वेश्चन में आपको प्रेशर डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है। प्रेशर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। दिस इज 6 मीटर हाइट ऑफ द वॉल और मूवमेंट ऑफ वॉल को हमने दिखा दिया कि इस तरह है। मूवमेंट ऑफ वॉल इस तरह है। दिस इज आवर ग्राउंड सरफेस और यहाँ पे जो हमारा गामा की वैल्यू है वो कितना है 17.44 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फाई की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। अब यहाँ पे ड्रॉ करो प्रेशर डायग्राम। एक्टिव कंडीशन है बिकॉज मूवमेंट ऑफ वॉल इज अवे फ्रॉम द सॉइल। तो ये वाला वैल्यू है, ये वैल्यू कितना है K इंटू गामा इंटू H। और यहाँ पे दिखाओ कि टोटल कितना लग रहा है PA। PA की वैल्यू हमने कितना निकाला है, दैट इज इक्वल टू 104.64। सो 104.64 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल। कितने हाइट पे, कितने हाइट पे? तो 6/3 मतलब कि 2 मीटर पे। उसी तरह पैसिव कंडीशन अगर ड्रॉ करोगे, पैसिव कंडीशन, तो दिस इज द रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर। 6 मीटर रिटेनिंग वॉल की हाइट है। मूवमेंट ऑफ वॉल को इधर हमने दिखा दिया है एंड दिस इज द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस बैकफिल की प्रॉपर्टी सेम है 17.44 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फाई की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। अब कितना है हमारा प्रेशर डायग्राम अगर यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये वाला वैल्यू एट द बेस ऑफ द वॉल कितना हो जाएगा Kp इंटू गामा इंटू H। और टोटल का टोटल पैसिव थ्रस्ट जो लग रहा है वो कितना है, तो Pp इज इक्वल टू 941.76 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल एंड वंस अगेन इट विल एक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। सो मैंने पहले भी बोला था कि जो मैग्नीट्यूड वाइज जो होगा सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, तो देख सकते हो आप देख सकते हो अगर कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू आ रही है। सबसे ज्यादा वैल्यू जो आ रही होगी वो पैसिव अर्थ प्रेशर की, पैसिव अर्थ थ्रस्ट की। तो सबसे ज्यादा वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे, सबसे पहले तो Kp, K0 और K कर लोगे तो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू आ रही है, Kp, K0, और सबसे कम किसकी आ रही है K। या अगर थ्रस्ट वाइज अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा Pp, देन P0 और देन हमने Pa। हमने देखा भी था, डायग्राम हमने देखा था क्या, ये दिस इज हमारा क्या था अर्थ प्रेशर। वाई एक्सिस पे क्या था अर्थ प्रेशर और मूवमेंट ऑफ वॉल। दिस इज द मूवमेंट ऑफ वॉल, मूवमेंट ऑफ वॉल into the soil and this is the movement of wall away from the soil, movement of wall away from the soil। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बताया था कि कुछ इस तरह का वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू कितना है, इस वैल्यू को बताओ कितना है। दिस इज Pp और Pp की वैल्यू कितनी है बताइए,
941.76 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल। ये वाला वैल्यू कितना है एट अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, रेस्ट पे कितनी वैल्यू आई है 156.96। सो दिस वैल्यू इज 156.96 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल। और एक्टिव कंडीशन के केस में कितना वैल्यू आया है, सो एक्टिव कंडीशन के केस में हमारा वैल्यू जो आया वो कितना है 104.64। सो दिस वैल्यू इज 104.64 kilonewton per meter. So this is the approach, this is the way how to approach the conventional question in the UPSC exam. इसी तरह अप्रोच किया जाता है, ऐसा मन में बात नहीं छिपा के आ जाना क्या चाहिए। दिस इज द वेरी ऑब्वियस, क्यों सर लिख रहे हैं, तो सर सिर्फ जो भी नॉलेज है उसको बताना होगा, एग्जामिनर को आपको बताना होगा कि हाँ इस तरह मैं ये भी जानता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा होता है और किस तरह डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द बॉल, कैसे मूवमेंट ऑफ द बॉल पे ये डिपेंड कर रहा है। तो एट रेस्ट कंडीशन पे मैंने बताया कि हमेशा जो वैल्यू होगा इन बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव कंडीशन। Is it okay or not? Okay, sir. Okay, sir. तो दिस इज द वे हाउ टू अप्रोच द कन्वेंशनल क्वेश्चन इन द यूपीएससी एग्जाम। सेम थिंग अगर दूसरा किसी एक आप ही के क्लास में अगर किसी ने इस तरह अप्रोच करके और यहीं पे छोड़ दिया, यहीं पे तो क्वेश्चन खत्म हो रहा था ना। आपने प्रेशर डायग्राम भी नहीं खींचा, आपने कंपेयर नहीं किया दोनों तीनों के वैल्यू को, आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर नहीं किया। तो एक स्टूडेंट है, अगर मान लो कि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ही इज गेटिंग 6 to 7 मार्क्स एंड यू आर गेटिंग 17 और 18 और 19 मार्क्स। सो ये दिस इज द बिग डिफरेंस। डिस्पाइट कि आपका भी आंसर सही है और दूसरे स्टूडेंट का भी आंसर सही है, लेकिन आपने यहीं पे छोड़ दिया। ये जो दूसरा स्टूडेंट है जो 6 नंबर पाया है आउट ऑफ 6, डिस्पाइट ही इज गेटिंग ही हैज सॉल्व्ड द करेक्टली, लेकिन उसको 6 नंबर मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि कुछ बताया ही नहीं है कि क्या होता है, बस 1/2 Ka गामा h स्क्वायर। 1/2 Ka गामा h स्क्वायर क्या है? तो अब जब तक प्रेशर डायग्राम नहीं खींचोगे और उसको बोलेगे नहीं कि दिस इज द एरिया ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम दैट इज इक्वल टू 1/2 K into gamma h, सॉरी K into gamma h and 1/2 into base into height। सो वहां से ये वाला वैल्यू आया और वहां से हमने निकाला है पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितने हाइट पे लगता है। आप पूरा का पूरा मार्क्स नहीं आपको मिलेगा, वो पूछेगा नहीं सारा चीज, वो पूछा है सिर्फ व्हाट इज द टोटल थ्रस्ट। टोटल थ्रस्ट अगर आपके पास टाइम है तो लाइन ऑफ एक्शन भी निकाल दो। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तो हमने लाइन ऑफ एक्शन को ही बता दिया इंडिविजुअली कि कितने कितने मीटर। तो लाइन ऑफ एक्शन तो सब में सेम होगा ना, बिकॉज और कुछ तो है नहीं ना, आप कुछ का इफेक्ट तो है नहीं ना, तो सरचार्ज है ना, तो लेयर्ड सॉइल है ना, तो वाटर टेबल है। तो लाइन ऑफ एक्शन तो तीनों में सेम ही होगा। कितने मीटर पे? सब में जो लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो कितने मीटर पे होगा? 2 मीटर्स फ्रॉम दी बेस ऑफ द वॉल। समझ में आ गया ना कैसे आपको अप्रोच करना है। सो दिस इज द वे हाउ टू अप्रोच द कन्वेंशनल क्वेश्चन इन द यूपीएससी एग्जाम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 1995 फॉर एन अर्थ रिटेनिंग वॉल shown in the figure. Find the total active thrust per unit length of the wall and its location. So you have to clearly in the question it is mentioned that you have to find the total force per unit length of the wall and of course its location, कि कितने हाइट पे वो टोटल एक्टिव थ्रस्ट लग रहा है। दोनों चीज निकालिए जल्दी से। अब यहाँ पे क्या है, लेयर्ड सॉइल है या कि नहीं है? अरे भाई यहाँ पे आप देखोगे तो वाटर टेबल जैसे आ गया है तो क्या हो गया, अब लेयर्ड सॉइल में आ गया ना। यहाँ का कुछ प्रेशर दूसरा होगा, कितना होगा यहाँ पे? अगर ये 6 मीटर हाइट तक देखा जाए तो कितना हो जाएगा? K इंटू गामा सबमर्ज इंटू H, बोलो। और ऊपर जो था वो क्या था हमारा? K इंटू गामा इंटू H, जो ये वाला हाइट होगा 4 मीटर का है। तो अलग अलग हो गया ना, तो अलग अलग निकालिए। हमने मान लिया कि दिस इज लेयर 1 और दिस इज लेयर 2। अब लेयर 1 में क्या क्या लग रहा है देख लो। लेयर 1 में अगर हम लोग ड्रॉ करें तो लेयर 1 में देखो, एक तो हमारा क्या लग गया, एक्टिव कंडीशन की वजह से क्या लगा बताइए? K इंटू ये वाला वैल्यू कितना हो गया? 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर। तो क्या हो जाएगा? K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाई की वैल्यू कांस्टेंट है थ्रू आउट, फाई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो K हो जाएगा, क्या हो जाएगा? K इंटू गामा डी, ट्राई डेंसिटी ऊपर होगा ना, तो K इंटू गामा डी इंटू क्या? 4 मीटर H। तो ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Ka इंटू गामा डी इंटू H को हमने मान लिया है कि दिस इज Z1 और ये हमारा Z2 है। तो क्या हो गया? K इंटू गामा डी इंटू Z1। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस साइन 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30। सो द वैल्यू विल बी 1/3। तो 1 बाई 1 करते हैं। इन लेयर 1 एक्टिव टोटल एक्टिव थ्रस्ट, टोटल एक्टिव, आपको प्रेशर निकालने की जरूरत है क्योंकि आप डायग्राम जब दिखाओगे तो बेस पे प्रेशर भी दिखाना होगा। सो टोटल एक्टिव थ्रस्ट ड्यू टू
किसके वजह से? पाइस ऑयल। कितना हो जाएगा? Ka1 इंटू गामा डी इंटू Z1। तो कितना हो जाएगा? Ka1 की वैल्यू 1/3, गामा डी की वैल्यू कितनी है? गामा डी इज 15.7, तो 15.7 इंटू Z1 की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर। तो ये वाला वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 15.7 into 4 divided by 3. So this value is coming 20.933. 20.933 kilonewton per meter length of the wall acting at, कितने पे एक्ट कर रहा है? एक्टिंग एट, बताइए कितने पे एक्ट करेगा? तो 6 + 4/3। अरे ये कितने पे एक्ट करेगा? 6 + 4/3, तो कितना हो गया? 4/3 + 6, 7.33 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। 7.33 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। उसी तरह अब और भी कुछ लगेगा क्या? फाई 1 में कुछ और भी लगेगा क्या? इन लेयर 1 में कुछ और भी आएगा? एक्टिव अर्थ प्रेशर किसी और वजह से भी आएगा क्या? सरचार्ज बोलो। के कारण। सरचार्ज की वजह से। हाँ, सरचार्ज लोडिंग की वजह से। तो सरचार्ज लोडिंग की वजह से क्या हो गया? ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको हमने 1 बोल दिया, इसको हमने 2 बोला है, तो कितना हो जाएगा? लेयर 1 में ही क्या हो जाएगा? टोटल एक्टिव थ्रस्ट, फर्स्ट वाला टोटल एरिया लेते एक्टिव हैं ना सर, थ्रस्ट। जो ऊपर वाला जो इक्वेशन लिखे जी? उसमें एरिया ना लेंगे ट्रायंगल का। सॉरी, यहाँ पे हमें थ्रस्ट लिखा था ना, 1/2 इंटू के Z1²। हाँ, ये तो टोटल थ्रस्ट, हमने प्रेशर नहीं लिखा है ना, तो 1/2, ये गलत हो गया ना। 1/2 इंटू 1/3 इंटू 50.7 इंटू 4², ये थ्रस्ट होगा ना। ये तो प्रेशर है 20.933। तो ये कितना आ गया देखो? 15.7 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 6, 41.866। 41.867। ये वाला वैल्यू तो हमने जो निकाला था वो प्रेशर है। प्रेशर भी हमें निकालना होगा, क्योंकि डायग्राम जब खींच रहे हो तो बेस पे आपको दिखाना होगा। 41.87 किलो न्यूटन पर मीटर ऑफ द वॉल, और टोटल एक्टिव थ्रस्ट ड्यू टू सरचार्ज लोडिंग। और इसको हमने मान लिया PA1 और कैपिटल PA1, दिस इज कैपिटल PA2। कितना हो जाएगा कैपिटल PA2? कैपिटल PA2 की वैल्यू हो जाएगा KA1, या K तो K कांस्टेंट है ना, फाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो K इंटू Q इंटू Z1। हाँ, Z1। तो K की वैल्यू कितनी है? 1/3 इंटू Q। सरचार्ज लोडिंग कितना है? सरचार्ज लोडिंग जो है हमारा 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो 14 इंटू 4 मीटर। एक्टिंग एट कितने हाइट पे? तो 6 + 4/2, मतलब कितने? 8 मीटर। 8 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। ये वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 18.67 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल एक्टिंग एट 8 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। उसी तरह आप जो है वो फिर से अब लेयर 2 में अब आ जाओ। ये लेयर 2 में आ जाओ। लेयर 2 में सबसे पहले तो टोटल एक्टिव थ्रस्ट ड्यू टू पाइस ऑयल, टोटल एक्टिव थ्रस्ट ड्यू टू पाइस ऑयल PA3 कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू के इंटू गामा सबमर्ज इंटू Z2², बिकॉज वाटर टेबल है। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे हमने निकाला, ये कितना हो जाएगा? K इंटू गामा सबमर्ज इंटू Z प्लस क्या होगा? एक और बोलिए, वाटर के वजह से क्या हो जाएगा? गामा W इंटू Z2, ये भी Z2, और प्लस एडिशनल सरचार्ज लोडिंग। बोलो, एडिशनल सरचार्ज लोडिंग किसके वजह से? ये इसके वजह से। तो ये कितना हो जाएगा? K इंटू ZQ, और प्लस एडिशनल सरचार्ज लोडिंग किसके वजह से? Z1। अरे ये वाला जो है ऊपर का लेयर 1 क्यों आ रहा है? हाँ, तो ये वाला जो है K इंटू ये वाला Q है, प्लस K इंटू गामा 1 इंटू Z1, गामा D इंटू Z1, ये सारा चीज आएगा। 3, 4, 5, 6 सारा चीज निकालिए। 3 क्या हो जाएगा? तो 3 के बारे में हमने बोला कि 1/2, तो 1/2 इंटू K 1/3 गामा सबमर्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो गामा सेट माइनस गामा W हमने 9.81 ले लो, तो 9 कितना है गामा सेट इज 19.8, so 19.8 माइनस 9.81
इंटू Z2 की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर। एक्टिंग एट लिख देंगे, पहले ये वाला वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। 19.8 माइनस आपका 9.81, 9.99 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 6 कितना आया 59.94। यस सर। 59.94 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ एक्टिंग एट कितने हाइट पे लगेगा, कितने h/3, तो 6/3 कितना 2 मीटर, तो 2 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, तो 2 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। उसी तरह PA4 निकालो। PA4 क्या है, ड्यू टू द जो वाटर प्रेशर की वजह से, तो कितना हो जाएगा PA4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू गामा W 9.81 इंटू Z स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर। एक्टिंग एट कितने पे लगेगा, तो ये फिर 2 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। कितना आएगा ये PA4 की वैल्यू बताइए, 9.81 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 2, 176.58 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल एक्टिंग एट 2 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। उसी तरह PA5 क्या हो जाएगा, PA5 ड्यू टू सरचार्ज लोडिंग, तो PA5 जो हो जाएगा टोटल एक्टिव थ्रस्ट इन लेयर 2, टोटल एक्टिव थ्रस्ट इन लेयर 2 ड्यू टू Q सरचार्ज लोडिंग। PA5 कितना हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू Q 14 है इंटू H की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, तो कितना हो गया ये 28 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल एक्टिंग एट कितने पे लगेगा, तो 6/2 कितना 3 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। PA6 भी निकाल लीजिए। PA6 किसके वजह से है, तो PA6 भी सरचार्ज लोडिंग की वजह से है, लेकिन वो कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू K की वैल्यू 1/3 इंटू सरचार्ज कितना हो गया गामा D इंटू Z1, गामा D कितनी है 15.7 इंटू 4, 15.7 इंटू 4, ये हमारा सरचार्ज लोडिंग जो है वो 62.8 का सरचार्ज लोडिंग है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 15.7 इंटू 4 इंटू H स्क्वायर, तो H स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या, हाँ यहाँ तो ठीक है, K इंटू 6 का स्क्वायर। कहाँ पे PA6 भी तो हमारा ट्रायंगुलर ही है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा ना, यहाँ जो होगा बस 6 होगा ना। बोलिए, अरे K इंटू गामा D इंटू Z1, K की वैल्यू 1/3 इंटू गामा D कितना है, तो गामा D है 15.7 इंटू 4, और कितने हाइट तक लगेगा, तो कितने हाइट तक लगेगा ये 6 मीटर, तो 6 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, वन ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल एक्टिंग एट कितने पे 3 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। अब टोटल निकाल लो, ये भी ड्यू टू सरचार्ज लोडिंग है, ड्यू टू सरचार्ज लोडिंग गामा D इंटू Z1, इसके वजह से है, ठीक है। अब टोटल निकालिए, तो टोटल क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 प्लस PA4 प्लस PA5 प्लस PA6। कितना आ रहा है टोटल वैल्यू, देखो PA1 कितना है, PA1 देखिए कितना है, PA1 इज 41.87 प्लस PA2 कितनी है 18.67 प्लस PA3 कितनी है 59.94 प्लस PA4 इज 176.58 प्लस आपका PA6 जो है वो 125 पॉइंट कुछ छूट गया क्या 176 के 176.1 PA4 है, PA5 जो है हमारा कितना है 176.58 के बाद कितना है 28 है ना, हाँ 28। हाँ 28
प्लस 125.6, पूरा का पूरा वैल्यू जो आया है वो 450.66 किलो न्यूटन पर मीटर। पूरा जो वैल्यू हमारा आया है पूरा टोटल थ्रस्ट दैट इज इक्वल टू 450.66 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल। तो पूरा का पूरा वैल्यू जो है आपका 450 है। तो इससे थ्रस्ट ये निकाल लो, लाइन ऑफ एक्शन निकालिए, PA1 इंटू Z1 प्लस PA2 इंटू Z2, तो वहां से लाइन ऑफ एक्शन आपका निकल जाएगा। तो वहां से लाइन ऑफ एक्शन निकाल लो, जल्दी से निकाल के बताइए। तो यहाँ से टोटल जो आपका थ्रस्ट आ गया वो कितना आ गया, टोटल एक्टिव थ्रस्ट। तो टोटल एक्टिव थ्रस्ट जो आ रहा है वो 450.66 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल। अब Z की वैल्यू निकालो, तो Z क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू PA1। फिर से अब देखो PA1 कितना है, Z कितना है PA1। तो PA1 हमारा कितना था, PA1 जो है वो हमारा 41.87 इंटू 7.33, 41.87 इंटू 7.33 प्लस PA2 कितना है, PA2 जो है वो 18.67 इंटू 8, 18.67 इंटू 8 प्लस PA3 कितना है, PA3 जो है आपका वो है 59.94 इंटू 2, 59.94 इंटू 2 प्लस PA4 कितना है आपका, PA4 जो है वो है आपका 176.58 इंटू 2, 176.58 इंटू 2 प्लस PA5 कितना है, तो PA5 है आपका PA5 जो है 28 इंटू 3, 28 इंटू 3 प्लस PA6 कितना है 125.6 इंटू 3, तो 125.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई टोटल फोर्स। टोटल एक्टिव थ्रस्ट कितना है, टोटल एक्टिव थ्रस्ट जो है वो 450.66। तो ये वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, 3.08 3.08 सर, कितना आ रहा है 3.08 मीटर प्लस 18.67 इंटू 8 प्लस 59.94 इंटू 2 प्लस 176.5 इंटू 2 प्लस 28 इंटू 3 प्लस 125.6 इंटू 3 divided by 450.66. So it is coming 3.084. So line of action is 3.084 meter from the base of the wall. टोटल थ्रस्ट जो आ रहा है उससे हमारा यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्शन लगेगा पूरा का पूरा, अगर आप इसको मर्ज करोगे तो वो कंबाइंडली जो लगेगा वो कितने पे लगेगा, ड्यू टू द एट 3.084 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो इन द नेक्स्ट क्लास, यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोहेजन बाय रसेल एंड बेल थ्योरी से कैसे हम लोग कोहेजन के इफेक्ट को देखेंगे, और उसके बाद फिर उस पर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू।